Hello everyone, I'm Fahad Ali and you are watching my YouTube channel Study with Fahad. So in last video we had discussed origin of language and today we are going to start another very much important topic that is related with human language, linguistics, design features of human language by Charles Francis Hawkins. So before going to design features, I would like to briefly give you intro about this great American linguist Francis Hawkins. Charles Francis Hawkins was born in 1916 and died in 2000. Was a prominent American linguist known for his influential work in structural linguistics and the study of language as a biological and social phenomenon. He was born on May 30, 1916 in Columbus, Ohio State. Hawkins studied at Ohio State University and later earned his PhD in linguistics from Yale University in 1943. Throughout his career, he held teaching positions at several institutions including Cornell University, where he spent much of his professional life. So ये जो है ना वो चार्ल्स फ्रांसिस हॉकिट का जो करियर एंड जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है. ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज फॉर्मुलेशन ऑफ द डिजाइन फीचर ऑफ लैंग्वेज, a framework identifying key characteristics that make human language unique compared to animal communication system. तो इन्होंने जो है ना वो डिजाइन फीचर्स दिए थे. तो डिजाइन फीचर्स एक्चुअल में करते क्या है, वो एनिमल का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको और ह्यूमन लैंग्वेज को अलग अलग करते हैं. मतलब वो जो है ना वो एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि हाँ भाई ये जो है एनिमल कम्युनिकेशन है एंड दिस वन इज ह्यूमन लैंग्वेज. These features include aspects like arbitrariness, displacement, productivity, and duality of patterning. Hawkins' work based several fields including linguistics, anthropology, psychology, and communication theory, contributing to the broader understanding of language as both a cognitive and social system. His approach combined detailed structural analysis with an interest in the evolutionary and biological basis of language. He published several important works. तो इन्होंने जो है ना वो बहुत अहम जो है बहुत इम्पोर्टेंट वर्क्स पब्लिश किए हुए हैं, इंक्लूडिंग अ कोर्स इन मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स. और जो ये है अ कोर्स इन मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स, ये तो टेक्स्ट बुक के तौर पर भी इस फील्ड में जो है ना वो पढ़ाया जाता है. Charles Francis Hawkins passed away in 2000, leaving lasting legacy in linguistic theory and the study of human communication. तो इन्होंने जो है ना एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन किया हुआ है लिंग्विस्टिक्स में. अच्छा, उसके बाद अगर हम डिजाइन फीचर्स के बैकग्राउंड की बात करें जो चार्ल्स फ्रांसिस हॉकिट ने दिए हुए हैं, he developed a set of features in the 1950s and 1960s to help linguists. जो लिंग्विस्ट थे उस टाइम को उनको या जो अभी है लिंग्विस्ट उनको हेल्प करने के लिए टू अंडरस्टैंड what makes human language special and distinct from other forms of communication found in the animal kingdom. देखिए ह्यूमंस भी तो वो है ना वो एनिमल किंगडम से ही बिलोंग करते हैं. जाहिर सी बात है जो रिमेनिंग क्रिएचर्स हैं, जो रिमेनिंग एनिमल्स हैं, वो भी एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं. अगर लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव से देखें, अगर लैंग्वेज के हिसाब से देखें, तो कौन सी चीज है जो ह्यूमंस की जो लैंग्वेज उसको डिफरेंट बनाती है और जो है ना वो एनिमल का जो कम्युनिकेशन है उसको अलग बनाती है. तो इस चीज को जो है ना दीज फीचर्स जो है जो चार्ल्स फ्रांसिस हॉकिट ने दिए हैं वो अलग करते हैं, वो यूनिक बनाते हैं ह्यूमन लैंग्वेज को. ही आइडेंटिफाइड 13 design features that describe the structural and functional aspects of human language. इन्होंने 13 जो है ना वो डिजाइन फीचर्स दिए हुए हैं. फर्दर एक चीज मैं आपको बताऊं, ये 13 जो है ना वो डिजाइन फीचर्स हैं जो एक्सटेंड होकर 16 बन जाते हैं. तो अभी हम जो है ना वो 16 डिजाइन फीचर्स डिस्कस करने वाले हैं. These features highlights how language is flexible, creative and capable of expressing complex ideas and abstract ideas. तो ये जो है ना वो चीजें, ये डिजाइन फीचर्स इन इन चीजों को कवर करते हैं.
तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट हमारा डिजाइन फीचर है ह्यूमन लैंग्वेज का। अच्छा, एक बात याद रखें, डिजाइन फीचर्स हो या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, ये एक ही चीज है। फर्स्ट है वोकल एडिटरी चैनल। Language is primarily spoken and heard, though this doesn't exclude sign language. It involves sound production and hearing. तो जो लैंग्वेज होती है ना, वो वोकल, जाहिर सी बात है, वो हम अटर करते हैं, हम प्रोड्यूस करते हैं लैंग्वेज, जो बाद में जो है ना वो हियरिंग जो सिस्टम के जरिए वो रिसीव करके अंडरस्टैंड करते हैं। दिस इज व्हाट लिसनर, जो स्पीकर होता है वो लैंग्वेज प्रोड्यूस करता है, जो लिसनर होता है वो लैंग्वेज को सुनता है। सो दिस इज अ म्यूचुअल process. Second is broadcast transmission and directional reception. Speech is broadcast in all directions, but listeners can identify the direction it's coming from. देखें, जो साउंड वेव्स होती हैं जब लैंग्वेज प्रोड्यूस होती है, हम बोलते हैं कुछ, तो साउंड वेव्स जो है ना वो हर डायरेक्शन में मूव करती हैं, हर डायरेक्शन में साउंड फैल जाता है। बाद में जो है ना वो लिसनर जो होता है ना वो ये डिटेक्ट कर लेता है कि ये जो साउंड्स हैं ये कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सेकंड ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन एंड डायरेक्शनल रिसेप्शन जो हमें बता रहा है ना, तो ये इस चीज को डिफाइन कर रहा है। थर्ड वन है रैपिड फेडिंग, यहाँ जिसको हम ट्रांजिस्टेंस भी बोलते हैं। स्पोकन लैंग्वेज सिग्नल्स आर टेम्पररी एंड फेड क्विकली, दे डोंट persist लाइक रिटन वर्ड्स। अच्छा, एक चीज जो स्पीकर जो होता है वो बोलता है, उसके बाद वो गायब हो जाती है। लेकिन जो रिटन लैंग्वेज होती है, फॉर एग्जांपल मैंने एक वर्ड लिखा पेज पर, तो वो तो एग्जिस्ट करेगा ना जब तक वो पेज महफूज है। लेकिन जो ओरली जो अटर करता है कोई स्पीकर साउंड, वो थोड़ी देर के बाद गायब हो जाता है। अंडरस्टैंड दिस वन, अ थर्ड डिजाइन फीचर गिवन बाय चार्ल्स फ्रांसिस हॉकिट। Fourth one is interchangeability. Speakers can both send and receive message. Anything you hear, you can also say. अच्छा, जो हम जो लैंग्वेज सुनते हैं, जो लिसनर जो लैंग्वेज सुनता है, वही सेम लैंग्वेज वो भी प्रोड्यूस कर सकता है। Interchangeability means this thing. Fifth one is total feedback. Speakers hear and monitor their own speech, allowing them to correct errors. स्पीकर जो होता है वो अपनी लैंग्वेज प्रोड्यूस करता है, वही लैंग्वेज सुन भी सकता है। अगर कोई गलती वो देखता है या कोई गलती कर बैठता है स्पीकिंग के दौरान या स्पीच के दौरान, तो वो उसको करेक्ट कर सकता है। दिस इज फिफ्थ डिजाइन फीचर ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। सिक्स्थ जो है ना वो है स्पेशलाइजेशन। स्पीच साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड स्पेसिफिकली फॉर कम्युनिकेशन, नॉट फॉर अदर बायोलॉजिकल फंक्शंस लाइक ब्रीथिंग और ईटिंग। तो जो स्पीच साउंड्स होते हैं ना, वो उनका एक ही पर्पस होता है, वो होता है कम्युनिकेशन का पर्पस। अंडरस्टैंड, उनके कम्युनिकेशन का पर्पस होता है, उनका अदर जो बायोलॉजिकल सांस लेना या जो खाना खाना है वो इस चीज से रिलेटेड नहीं। स्पीच का सिर्फ एक ही पर्पस है, वो है कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग आइडियाज। सेवेंथ जो है वो है सिमेंटिसिटी। वर्ड सिमेंटिसिटी से ही हमें पता चलता है कि दिस इज रिलेटेड विथ मीनिंग। तो जो हम लैंग्वेज स्पेसिफिक सिग्नल्स आर डायरेक्टली टाइड टू स्पेसिफिक मीनिंग्स। जो सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है स्पीकर, जो स्पीकर लैंग्वेज प्रोड्यूस करता है, उनकी मीनिंग होती है। मीनिंगलेस वो नहीं होते, एक्सेप्ट जो साउंड्स होते हैं। तो साउंड्स तो जाहिर सी बात है वो उनको जो है ना एक और डिजाइन फीचर आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा। यहाँ तक यही मीनिंग है, जो लैंग्वेज ह्यूमंस प्रोड्यूस करते हैं वो मीनिंगफुल लैंग्वेज होती है। दिस इज सेवेंथ design feature or characteristics of human language. Eighth one is arbitrariness. There's no natural connection between a word and its meaning. There's nothing inherently cat-like about the word cat. अच्छा, जो स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी बेस्ड, जो है ना वो लैंग्वेज एक ऐसी चीज है, लाइक एक वर्ड है, हम केट जो बोलते हैं बिल्ली को, तो हम क्यों बोलते हैं? क्या वो CAT जो है वो उस बिल्ली की तरह दिखता है? नहीं दिखता ना। कोई भी कनेक्शन नहीं होता एक वर्ड और जिस ऑब्जेक्ट के लिए वो वर्ड हम यूज करते हैं ना, उनके बीच में कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं होता। इस चीज को या इस प्रॉपर्टी ऑफ लैंग्वेज को, इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज को या इस डिजाइन फीचर ऑफ लैंग्वेज को हम बोलते हैं आर्बिट्ररीनेस।
उसके बाद जो 9th नंबर पर हमारे पास डिजाइन फीचर है वो डिस्क्रीटनेस। डिस्क्रीटनेस मीन्स लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिट्स लाइक फोनीम्स दैट कैन बी कंबाइंड इन सिस्टमैटिक वेज। तो जो डिस्क्रीटनेस का मतलब है जो लैंग्वेज जो है ना वो सेपरेट साउंड्स की बनी हुई होती है, ह्यूमन लैंग्वेज जो होती है एज कम्पेयर टू एनिमल लैंग्वेज, बिकॉज एनिमल्स के जो साउंड्स होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, वो जो सिमिलर साउंड्स होते हैं, while ह्यूमंस लैंग्वेज साउंड्स आर डिफरेंट साउंड्स लाइक प ब ट, और वो सिस्टमेटिक वे से कंबाइन होकर जो है ना वो वर्ड्स बनाते हैं, फिर वर्ड्स मिलकर ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए सेंटेंस बनाते हैं। उसके बाद नंबर 10th जो डिजाइन फीचर है वो है डिस्प्लेसमेंट। ह्यूमंस कैन टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर नॉट प्रेजेंट इन स्पेस और टाइम, एग्जाम्पल द पास्ट फ्यूचर और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। मतलब ह्यूमंस जो है ना वो फ्यूचर और पास्ट की बात कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ लैंग्वेज, और वो ऐसी ऐसी सिचुएशंस की बात कर सकते हैं, ऐसी ऐसी कंडीशंस की बात कर सकते हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती उस वक्त, या कभी भी जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करती। दिस इज जस्ट प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। देन 11th पर जो है ना वो है प्रोडक्टिविटी और ओपननेस, जिसको हम क्रिएटिविटी भी बोल सकते हैं। लैंग्वेज कैन बी यूज्ड टू क्रिएट एंड अंडरस्टैंड एन इनफिनिट नंबर ऑफ नोबल मैसेजेस। मतलब इट इज क्वालिटी और वी कैन से इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। तो वो जो है ना वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है ह्यूमन लैंग्वेज की जिसको हम प्रोडक्ट भी बोलते हैं। मतलब हम ऐसे भी सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं जो पहले कभी हमने सुने भी ना हो, विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ sets of elements or finite number of words we can create larger chunks of sentences. Then 12th नंबर पर आता है ट्रेडिशनल ट्रांसमिशन। मतलब लैंग्वेज इज लर्न सोशली एंड कल्चरली नॉट बायोलॉजिकली इनहेरिटेड। मतलब जो लैंग्वेज होती है ना अकॉर्डिंग टू दिस डिजाइन फीचर वो सोशली और कल्चरली लर्न की जाती है, बायोलॉजिकली इनहेरिटेड नहीं होती। 13 जो है वो ड्यूअलिटी ऑफ पैटर्निंग। मतलब लैंग्वेज ऑपरेट्स ऑन टू लेवल्स, इंडिविजुअल साउंड्स व्हिच आर मीनिंगलेस अलोन कंबाइंड टू फॉर्म वर्ड्स व्हिच हैव मीनिंग। टू जो है ना वो ऑपरेटेड सिस्टम्स होते हैं लैंग्वेज में। अगर हम बात करें तो लैंग्वेज टू ऑपरेट सिस्टम पर काम करती है। कैसे? जैसे साउंड्स जो होते हैं प ब ट, या जो क साउंड है, ये क्या है? मीनिंगलेस साउंड्स हैं। जब ये सिस्टमेटिक वे से कंबाइन होते हैं तो फिर क्या बनाते हैं? वर्ड्स बनाते हैं, और फिर जो वर्ड्स होते हैं ना वो वर्ड्स मीनिंगफुल होते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लैंग्वेज और डिजाइन फीचर डिफाइंस दीज थिंग्स लाइक दिस। फर्दर जो फोर्ट अच्छा ये जो 13 है ना, ये दिए हुए हैं चार्ल्स फ्रांसिस हॉकिट ने। उसके बाद इसको एक्सटेंड करके जो 14 जो होता है हमारा डिजाइन फीचर वो है प्रिवेरिकेशन। प्रिवेरिकेशन ह्यूमंस कैन लाई और से थिंग्स दैट आर फॉल्स और नॉनसेंसिकल। मतलब ह्यूमंस जो है ना वो फॉल्स स्टेटमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, वो जो है ना वो झूठ भी बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डिजाइन फीचर। 15th जो डिजाइन फीचर है वो है रिफ्लेक्सिवनेस, मेटालिंग्विस्टिक्स फंक्शन। मतलब ह्यूमंस कैन यूज लैंग्वेज टू टॉक अबाउट लैंग्वेज इटसेल्फ। अच्छा, ह्यूमंस के पास ये भी एबिलिटी है, लैंग्वेज में ह्यूमंस की ये भी प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो उसी लैंग्वेज के बारे में लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। लाइक सपोज अभी मैं बोल रहा हूँ, जो अभी मैं बात कर रहा हूँ लिंग्विस्टिक्स के बारे में, जो लैंग्वेज के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हम क्या यूज कर रहे हैं? जाहिर सी बात है लैंग्वेज के थ्रू ही हम डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज रिफ्लेक्सिवनेस कैरेक्टर। उसके बाद जो 16th एंड लास्ट जो हमारा डिजाइन फीचर है वो है लर्नबिलिटी। वी कैन लर्न न्यू लैंग्वेजेस इवन आफ्टर चाइल्डहुड। एक तो वो लैंग्वेजेस होती हैं जो हम बचपन में सीखते हैं, जिसको हम मदर टंग कह लें। दूसरी वो भी लैंग्वेजेस होती हैं जो बाद में हम सीखते हैं। तो दिस इज आल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, दैट वी लर्न न्यू लैंग्वेज इवन आफ्टर चाइल्डहुड। So these are, you know, 16 design features of human language that create a difference. That there's a difference between human language and animals communication system. So it's all about today's video lecture, the design features of human language, given by Charles Francis Hawkett. For more videos, please subscribe my YouTube channel, press the bell icon, like, share and comment. We'll meet you in next video. Remember me in your prayers. Take care. Allah Hafiz.